in the Chandulal Baradari. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, this school is also going well. The parents have been receiving a good response from us. And we have received many national as well as the international awards. The students have received and participated in the sports competitions, cultural competitions, and many more events organized by the state level as the national level. So I congratulate all the teachers, parents, and the students for their efforts which they have put to come forward. Thank you very much. Precious words. Would you please put your hands together for her? Assalamu alaikum, Bismillah First of all, I would like to say a big thank you to Allah subhanahu wa ta'ala who has given me an opportunity to talk. Now, second thing, I really appreciate the young dynamic, Fazlur Rahman, because the efforts what he has put in is highly appreciated. So I want each and everyone to congratulate him. Apart from that, I would like to say a big thank you to Khalil Rahman sir, because obviously he has invited me. So thank you for that. Now, look, I just want to tell you, the time what you are giving to me, it should be very fruitful. Those who are here, it's a hot sun. You have come to this school along with your kids. Now, your intention is quite clear. Your kids, your children should be the best in the world. That is the reason you have selected the school. So I just want to address all the respected parents here. Look, you parents have to do extraordinary here. Look, there are n number of schools, there are different students, but among all, only few of them are best. Now take example, last time I was having a meeting at Siyasat, a lot of doctors, a lot of engineers, all their parents, they have come there. And I asked them, you being a, housewife, usually what happens is, all the ladies who are here, they may be thinking, we are a housewife. So how we can give best of the best knowledge to our kids? Look, education is a mean. It's not everything. What we think most of the time is, I don't know about engineering. I don't know about medicine. I don't know. I want my son to be an IAS officer, but I don't know how to make my son IAS officer. Or I want my daughter to be a doctor, but I don't know how. Understand, you don't have to do anything. Nowadays, what is happening is, it's a blame game attitude. Trust me, kids are kids. Children are very beautiful people. The point is, parents, we are not giving the best. Don't mistake me. What it so happens, we always blame our children. We say that they have phone with them. They have mobile always with them. No. What you do, they follow. You take example. A person who is an IAS officer, his son will be an IAS officer. Why? You see a principal. You take example now. His grandfather opened the school. His dad carry on the legacy. The Fazlur Rahman, still he is there. From one school, 4 schools. You take an example. Allah subhanahu wa ta'ala has given you everything. He has given you eyes to understand, look into that, what's happening. You should be smart enough. The point what we do always is blame game. We don't have money, that is the reason my son hasn't become a doctor. Or we don't have time, that is the reason I haven't made the breakfast at the right time. So no excuses. In this world, only 2 things. One is result, second is excuse. That's all. Look, I've come all the way from Malakpet, Chanchalgura. Why? Because I have respect. I want to give back to my community. I want to give back to the India. You're understanding my point. Otherwise, I would have called up and tell, bro, I'm sorry, I can't come. That's an excuse. Are you getting me? आप लोग समझ रहे हो? सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं. या रिजल्ट हो सकता है, या एक्सक्यूज हो सकता है. खास तौर पे boys, girls who are here, please listen what I'm speaking. All the way, I will just brief up about myself. My name already they have announced, okay? I will just tell you, Alhamdulillah, I've got the privilege to travel 20 countries. Not one, not only America, not London, not Singapore, most of the places. 20 countries, it's not a small thing. So why I'm saying all these things is, I was also like you. I was also studying.
but I've got dream, I've got desire, I want to do something good. Now what I've done, if I want to stay in America, I can stay tomorrow. I've got visa, I've got everything. But why I'm not going? Because the knowledge what I have, I want to give back. आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? You can't live for yourself. आप लोग सिर्फ selfish होके अपने आप के लिए नहीं जी सकते. What we are doing right now is we are just taking care. For example, me, Fahim. Fahim will just take care of Fahim's family, wife, children, that's all. No. Fahim has to think of entire India. Fahim has to think of entire state. Fahim has to think of entire community. Then you will be growing. अगर आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते हो. खास तौर पे boys and girls, please understand, this is the need of an hour. Especially those who are in 9th standard or 10th standard, have your goals. After you doing your graduation, you will wake up. जब आप अपने क्या बोलते हैं सोते रहते हैं, जब जागते हैं आप कि मुझे कुछ करना है. No. 8th class, 9th class, 10th class students, आप लोग फाइंड आउट करिए आपको बनना क्या है. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए अगर आपके मम्मी डैडी उतना नहीं आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. यूज टेक्नोलॉजी ने राइट वे. हम क्या करते हैं, वही अपना ओल्ड सोशल मीडिया जो अपने को पसंद आए देख लो. आप समझिए आपका मकसद क्या है. अंडरस्टैंड, पेरेंट्स की अहमियत समझो. बच्चे लोग, माँ बाप, जब देखिए अनफॉर्चुनेटली 1.5-2 महीने पहले मेरे डैडी का इंतकाल हो गया. मुझे अब पता चल रहा है कि क्या वारी होती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए obedient son, whatever I have to do I have done. मेरा बोलने का मतलब है आप लोग याद रखिए, स्पेशली बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स और हो सकता है पेरेंट्स भी. क्या होता है मैं आपको लाइव बताता हूं. जिंदगी हम लोग किस तरह जी रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूं. We have 3 things. We have past, we have present, we have future. हम जो जी रहे हैं या पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं. मैं ऐसा था, मैं ऐसा करूंगा. योर लाइफ इज गेटिंग वेस्टेड. मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है. यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट. अब की जिंदगी यहां की. अब मैं यहां जिंदा हूं या ठहरा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं सोच सकता मैं कल क्या किया, कल क्या करने वाला हूं. अगर मैं अब, इफ आई एम डूइंग माई बेस्ट टुडे राइट नाउ, दिस प्रेजेंट विल बी माई फ्यूचर. समझ रहे हैं आप लोग? Are you getting me? Should I continue? सिर्फ यहां से आवाज आ रही. Should I continue, boys and girls? Okay. कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? Okay. Now आप लोग आज से, if possible, you can just write, or else you can talk to your teachers. They will give you goals. बनाइए आप लोग. क्या करिए? एक मकसद बनाइए आपकी जिंदगी का. ठीक है? उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं. 3 चीजें. ये मैं आपको इसलिए हल्लू आपको समझा रहा हूं, so that you should not forget forever. To organize this thing, it's not easy. Understand? आप लोग समझिए what efforts they've got to put in. Okay? Now first and foremost thing, have short-term goals. अब मान लीजिए अगर आपके 1 साल की पढ़ाई है, ठीक है, आप एक शॉर्ट-टर्म गोल्स बनाइए कि डेली, वीकली में क्या करना चाहिए. Are you getting? समझ रहे आप लोग? क्या करोगे आप लोग? शॉर्ट टर्म. ठीक है. उसके बाद होता है मिड टर्म गोल्स बनाइए. तीसरा जो होता है लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए. करेंगे आप लोग? विल यू डू दिस, यू गाइस? ओके. नाउ दिस थिंग्स यू कीप इन योर माइंड. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग. इसके अलावा आपको करना क्या है लाइफ में आगे बढ़ना. नाउ योर पेरेंट्स आर गिविंग यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन. You are here in this respected school. I've just gone through, so many awards, so many, positive things happen about your school. Now, what you've got to do? You've got to be self-aware. Now, I will tell you one thing. There is a girl in Raichur. She's got 16 gold medals. कितने? 16 gold medals लाए हो. आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो आप लोग. ठीक है. आप लोग बॉयज जो करें, बॉयज की आवाज नहीं आ रही. ओके, ठीक है. सी, अभी मैं आपको बताता हूं. मैं
मुझे भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा था। मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। दैट पॉइंट इन टाइम हम जैसा मेंटर नहीं था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। यू गॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैमिली। तो आप लोग उसको पॉजिटिवली यूज करिए। देखिए, हम यहाँ चंदूलाल बारादारी के पास हैं, हम ऑक्सफोर्ड में कैसा पढ़ सकते हैं? अगर आपकी सोच आती है तो आप नहीं पढ़ सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? हर वो चीज आपके जहन से ताल्लुक रखती है। तो आप लोग आज से जो मैं आपको समझा रहा हूं, शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स, वो जहन में रखिए। और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको एक 3 अल्फाज बताता हूं, वो आप उसको जहन में रखिए, ठीक है? शुड आई? पहली देखिए, 3 पीस होते हैं। 3 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले अपना पैशन समझिए। बाज आप बच्चे आप लोग हैं, ठीक है? आप 8th में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे। दिस इज द राइट टाइम एंड पेरेंट्स ऑल्सो, आप लोग अपने बच्चों को समझिए कि उनको अच्छा क्या लग रहा है। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम टाइम नहीं देते अपने बच्चों को और हम ब्लेम गेम करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, आप जो करते हो वही होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया। माँ बाप जो एक एक्शन करते हैं, बच्चों को असर पड़ता है। टीचर जो एक्शन लेते हैं, बच्चों पे असर पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, काफी स्कूल्स ऐसे रहते हैं जो ऐसे पीटीएम्स हो या एनुअल फंक्शंस हो या कोई भी सोशल गैदरिंग हो, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों करे भाई? क्यों इतने एफर्ट्स करें? आप लोग लकी इनफ हो, व्हाटएवर इट मे बी। देखिए, वन थिंग यू अंडरस्टैंड इन लाइफ, अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले आप एक अल्फाज ध्यान में रखिए। स्पेशली बच्चों, कौन सा अल्फाज वो आता है, उसको बोलते हैं जी से आता है। सर, एक कोई गेस कर सकते हो? माशाल्लाह, आप लोग तो हो। और उसके अलावा जी से आता है बॉयज। पहला जो अल्फाज है वो है ग्रैटिट्यूड। आप में वो एहसान मंदी रहना चाहिए, तो आपको सक्सेस मिलती है। एवर यू आर, ब्लेम गेम नहीं करते। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास फ्लाइट नहीं, वो कुछ नहीं। जो आप then you are going to be successful। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, neighbors grass always looks greener। अगर मैं सूट पहन के आना है तो मुझे एफर्ट्स करना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकता मैं। समझ रहे हैं आप लोग? लाइफ ऐसा नहीं है कि मेरी सहेली डॉक्टर बन गई तो मैं भी अपनी बेटी की सहेली को डॉक्टर बनाऊंगी। नो, आप अपनी बेटी या बेटे हैं तो उनको बात करिए, समझिए उनको करना क्या है। मैं लास्ट टाइम फार्मेसी करना चाह रहा हूं, मुझे पता नहीं है बाईपीसी लो या एमपीसी लो। देखिए, समझिए आप लोग, यहाँ के जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, खास तौर पे बच्चों, आप लोग ये समझिए, आज से एक कमिटमेंट करिए, आप एक डायरी मेंटेन करिए, आपके गोल्स बनाइए। आपको करना क्या है? आपके माँ बाप ये नहीं कह रहे कि 100 किलो का वजन आपके सिर पे रख लो, ऐसा तो नहीं कह रहे ना। सिर्फ पढ़ो, अच्छे अखलाक पैदा करो। समझ रहे आप लोग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। होप आप लोग समझेंगे बच्चों, आज से बहुत अच्छे बन जाएंगे। आप लोग तो है अच्छे, बट माशाल्लाह और अच्छे, ठीक है? ओके, एक सेकंड में हमारे फजल भाई आपकी क्लास बोलिए और आपको क्या बनना है। My name is Abdul Malik Rahman. I am from 6th class. जोर से बोलिए, सबको पता चलना चाहिए। Abdul Malik Rahman. वेरी नाइस, तालियां मारिए। डॉक्टर, वेरी नाइस, माशाल्लाह। हमें आपका वादा है? Yes. आपके पेरेंट्स को क्या करना चाह रहे हैं? खुश करना चाह रहे हैं, कैसा बोलिए? मैं मेरे पेरेंट्स को खुश करना चाहता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। आपका वादा है? Yes. कहाँ है आपके मम्मी डैडी आएंगे? No. ओके, क्या मैसेज देंगे आप उनको? कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बनेंगे सबका? Yes. और कुछ आप मैसेज देंगे आपके फ्रेंड्स को? आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे ना, तो वो लोग को आप डॉक्टर, माँ बाप का बच्चों, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। My name is Karima. First of all, give a lot of appreciation for her. Very nice. And I am very proud of myself. Very nice, mashallah. And I am very proud of my parents
they work hard. They work hard on me, and I'm very proud of my teachers. They are very appreciative me. I do something very successful in my life. I will make my parents proud, and I will always respect my teachers, parents, and all my elders. I always proud of my parents, and I always respect my parents, teachers, and my principal. See, very nice, man. I tell you one thing. All who are here has the talent. The only thing is that she has come on the stage and she got noticed. Very nice, ma'am. Mashallah. I wish you all the best. क्या बनना चाह रहे हो आप? माशाल्लाह. Very nice. I wish you all the best. पायलट किससे मिलेंगे आप पहले? एक लड़की है यहाँ. उनका नाम सलमा. आप उनसे मिलें. ठीक है? All the best. Give a round of appreciation. Inshallah Taala, we can see this as a future pilot. All the best. Good luck. Class आपके स्कूल क्या बनना चाहिए? जोर से बोलिए. My name is Khatija. I'm from class 6th, and my dream is to become an IAS officer. माशाल्लाह. See. कौन सी क्लास में हो? 6th. Sixth class. Imagine what talent we have. हम अंडर एस्टिमेट करते हैं यहाँ. आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये कहा कि 8th, 9th, 10th में सोचिए आप, बट खतीजा 6th में रहकर उनका ख्वाब ये है कि वो IAS ऑफिसर बनना है. वेरी नाइस खतीजा, माशाल्लाह. कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? कैसे आप IAS क्यों, कहाँ से आपके पास ये ज़हन में हुआ? Family is from Kohli, and my mother's dream also that I should be IAS officer. So I want to make my mother and father proud and be IAS so that they can become happy. And set my goal also for my parents and वेरी नाइस, माशाल्लाह. वेरी नाइस. now देखिए और एक एग्जांपल मैं आपको बताया. सोहबत सादतीन जो बोलते हैं, her own family members are into department. That is the reason their family parents told her to become an IAS officer. मैं यही बता रहा हूँ आपको. आप लोग हैं मेन. आपके जो लड़के जो लड़कियां जो आगे बनते हैं वो आपकी वजह से बनते हैं. समझ रहे हो? देखिए एक लाइफ एग्जांपल. ऑल द बेस्ट future IAS officer. Give a round of appreciation to her. माशाल्लाह. My name is Mohammad Zakia Sadiq from 5th standard. माशाल्लाह. See the confidence level. My देखिए आप. dream to become an engineer. माशाल्लाह. All the best. कैसा बनोगे इंजीनियर? Okay, very nice. देखिए आप. 5th कौन सी स्टैंडर्ड पे? 5th standard. 5th standard. I'm not saying anything wrong. Here we have talent. हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. मेरा बच्चा क्या बनेगा? इंजीनियर, IIT, बेस्ट ऑफ द बेस्ट. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं? आपके माँ बाप को क्या बोला? आपके माँ बाप आए हैं ना? बोलिए आप. इंशाल्लाह I will become an engineer. आप बोलिए उनको. Inshallah, I will become an engineer. Give a lot of appreciation to this. That this year will be calling one parents as a best student parent. So her students are studying here. Mashallah, they are doing well. All the students are studying well, and the parents have asked her that she wants to say a few things. And we are having one more guest here. Even he is a parent of a student. He is even a doctor here. After so much of a busy schedule, he came here to give a few important messages to us. Please continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मोहतरम सदर जलसा जनाब खलील रहमान साहब और सदर मदरसा जनाब फजल रहमान साहब को खुशी मेहमानी खसूसियत और मेरे इस्ताद किराम मौलवीन और मौलिमात और मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं यहाँ इस मकाम पे हूँ. अल्लाह का फजल करम है बात में आप सबकी खुलूस और मोहब्बत के साथ जो मुझे आज यहाँ चुना गया कि कुछ मैं कह सकूँ आप तमाम बच्चों के साथ. आज मेरा कहने का उन्वान है अखलाक के मुताबिक. सबसे पहले मैं अखलाक किस चीज़ से आता है? अखलाक आता है इल्म से. पहले हम सब बच्चों को कह रहे हदीस कुदसी है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिम. इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है. इल्म आएगा तो उनको अखलाक भी आ जाएंगे. तो अखलाक से सारे हम दुनिया और आखिरत में दोनों जहां में कामयाब रहेंगे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं
दुनिया में आप लोगों के लिए अखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। अगर आपके अखलाक अच्छे होंगे तो लोग आप पर फिदा होंगे। और ये अखलाक ऐसी चीज़ है जिसको ना बुढ़ापा ले जा सका और ना कोई बीमारी ले जा सकी और ना ही आप कोई मौत आपको इस चीज़ को ले जा सकती है। इसको अखलाक हो यानी वो बड़े बुजुर्ग कहते ना, जाने वाले चले गए दास्तां रह गई, यानी गुजरने वाले गुजर जाते लेकिन उनके अखलाक क्या है आज भी बरकरार रहते। आज भी हम उनको एक ऊंचे अखलाक से उनको याद करते हैं। तो असल हुस्न और खूबसूरती किसमें है? अखलाक में। हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमा बुइतुम उतिम्मु मकारिमल्लाह, मैं भेजा गया हूँ तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए। एक हदीस कुदसी का इरशाद है, मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू ज़र, मैं तुमको क्या दो चीज़ ना बताऊं जिसको आप अमल करने से आप दोनों जहां में कामयाब रह सकेंगे। एक, ज़बान पे काबू रखना और अपने अच्छे अखलाक अच्छे करना। अगर दो चीज़ अगर आप करेंगे तो खुदा की कसम महशर में आपसे बेहतर कोई नहीं रहेगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि आपका नाम कुरान में भी आपके नाम से कुरान सूरत नाजिल हुई। आपने अपने बेटे से कहा कि मैं दुनिया में खामोश रहने से नहीं पछताता, सिवाय इसलिए इस बात से पछताता हूँ जब कहीं मेरे मुंह से कोई बुरा बोलना निकल जाए। मेरे अजीज़ों, जो चीज़ आपको और हमको खूबसूरत बनाए, जैसे लिबास हमें खूबसूरत बनाती है और मेकअप वगैरह खूबसूरत बनाता है, लेकिन इसकी एक हद होती है, यानी एक टाइमिंग मुद्दत के लिए होता है। लेकिन अखलाक क्या है? बरकरार रहती है हमेशा, दुनिया में भी आखिरत में भी। चाहे आप 60 साल जिए या 60,000 साल जिए, ये तो ख़त्म होना ही है, ज़िंदगी है। लेकिन बरकरार अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे नबी के अखलाक कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। रब को इबादत से और मखलूक अपने अखलाक से राज़ी करो। रब को इबादत से और मखलूक अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश होगे। आखिर में मैं अपनी छोटी सी बात एक शेर से ख़त्म करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आए और इसमें अगर कोई कोताही गलती हो तो मुझे माफ़ करिए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल दे के टिकट ले लो जहाँ जाने की ख्वाहिश हो। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Respected Janab Fahim sir, international motivational speaker, parents on the stage, parents, ladies and gents, dear students, today we are celebrating the annual Festa 2022. It is the great thing for in the life of the students, because what they have done in that the whole academic year, they are going to be honored in the short while. After the gap of the 2 years, school was closed for the 18 months. There is a lot of difficulties for the parents as well as the students in the education sector. It was great loss of the students. But anyhow, our teachers had done excellent work going for the online classes. Just I go for the clap for your teachers. They have done excellent work in the pandemic and in the corona time. They have given this thing. But now that the regular classes are there, we have already conducted the FA1, FA1, and then we are having the SA2 from the 8th of this month, inshallah ta'ala, and as well as we are having the parents meeting on the 5th of this month, next month, and we hope that we are going to be do some good thing in that. And for the students, it is the time to have to work hard. You have to work hard. Then only you work hard will go for it. Now any problems there?
So the thing is that you have to prepare the timetable of the life, how you are going to be doing, कैसा काम करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आपको ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जिंदगी का कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे स्कूल को आ रहे हैं, घर को जाने के बाद क्या काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, इट विल बी नॉट गोइंग टू बी टॉलरेबल फॉर यू। आगे जाने के लिए ये दिस इज द कॉम्पिटिटिव एरा इज गोइंग ऑन। अगर आप आगे बढ़ना है तो ये दुनिया के साथ आपको चलना है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलते हैं तो आपको दुनिया पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। आज का दौर जो है बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव है, हर एग्जाम में आपके लिए मुश्किल है। आप जो 10th क्लास में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा है। यू आर हैविंग द कंपटीशन विद दैट 6 lakhs पीपल। ये पूरा जो काम है आपको करने के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। नाउ इन द शॉर्ट वाइल यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट द कल्चरल प्रोग्राम, देन आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम वी आर गिविंग द prizes to you. So we are going to be start. Our teacher ready for that the cultural. Thank you very much for just coming here. So thank you. License show के बहुत कम है। ये अराउंड के नाम पर बहुत लाइसेंस show के बहुत कम है। ये तो मालूम नहीं क्या है। वो मतलब होगा।
the first class. What is your name? My name is Aisha Begum. I am studying in fifth class. Parents came today. Good. Can you clap for this one? Okay. What is your name? My name is Salima Hassan. I am studying in first class. My name is Selva Fatima. PKG. What is your name? What is your name? Selva Fatima. Which class? Model name first class. So what are you doing today? First class. Good. What is your name? Diana. Which class? Third class. What are you doing today? Random. What is your name? My name is Nitin Fatima. I am studying in first class. X in action A. X in action fishes are floating. Boats are giggling. Morning, ha, jets are jumping. Lion in a liver. Monkeys are action. Night in the nation. All us. Poppers are popping. Queen does it. Work. Glass are raining. Students are sizzling. Sense. In a tip top. Up goes umbrella. Thank you. From service स्टेज 4 ड्रामा इज बाद में भी रख सकते हो ऊपर ले ले प्रैक्टिस कर लेंगे इसके बाद इसके इंडिविजुअल प्रैक्टिस सर खाली ड्रामा रोक लीजिए बटन पूरा और पेरेंट्स सारे देखो बिठा के रखना संघर्ष तो वो सब हम करते ही हैं और करना भी है अंत तक। हम जब बच्चे थे तो ABCD सीखना हमारे लिए संघर्ष था और जब कॉलेज में आए तो अच्छे अंकों से पास होना हमारे लिए संघर्ष है। लेकिन असली संघर्ष तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है, हम जब अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। लेकिन संघर्ष की परिभाषा हम लड़कियों के लिए अलग हो जाती है। कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्यों अलग हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे मित्र हमारे संघर्ष में साथ देते हुए नजर नहीं आते और इसलिए लड़कियां अपना हौसला खो देती है और घर गृहस्थी की गुमनाम जिंदगी में खो जाती है। यही मार्गदर्शन देने के लिए कैरियर सिक्योरिटी प्रोग्राम सामने आया है और इसी के प्रस्तुत अब हम पेश करने जा रहे हैं। शाम के 7:05 बज रहे हैं। पिताजी ड्राइंग रूम में चैन से अखबार पढ़ रहे हैं और माँ परेशान होकर टहल रही है। Turn this side. बोलिए turn this side. कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज रहे हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी रात से आई है। बच्चों को पूरा कर लीजिए स्टूडेंट्स ओ जी सुनते हो, कुछ बोलोगे भी? वो भगवान इतना क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगी, किसी काम में फंसी होगी। आने दो, आज उसे बताती हूँ। पिताजी मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ थी तू आज और इतनी देर? कहाँ थी तू आज और इतनी देर क्यों हो गई और क्या बताना है?
आज हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ। वहाँ दिल्ली से एक मेंटर आए थे। उन्होंने हमें करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया है। बेटा, ये करियर और सिक्योरिटी का प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा। उसके बाद हमारी प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये प्रोग्राम ये सुनिश्चित करता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है। बस हो गया। बस हो गया तुम दोनों। क्या क्या डॉक्टर ऑफिस में काम कर क्या पढ़ाई करेगी, क्या आईएएस बनेगी? जब लड़की और आईएएस दोनों के लिए पैसे जमा करो। वो बेटा है, वो कमाएगा, वो खिलाएगा हमें, ये तो ससुराल जाएगी। तो क्या हुआ, वो लड़की है तो उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। आप और आपकी लाडली। माँ मैं आ गया। अरे मेरा गोलू तो आ गया। माँ मैं फर्स्ट इसमें मैं बाइक रेसिंग वाली वीडियो गेम में फर्स्ट आया। चलो अच्छा है, किसी भी चीज में तो फर्स्ट आया। काम कर रही होती है और माँ और बेटा दोनों टीवी देखने लगते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। अब मैं पढ़ने जाऊँ? जब खाना बना ही दिया तो परोस भी दो, मेरी सीरियल छूट जाएगी ना। अच्छा माँ, अभी लाती हूँ। जीवन कर देता है सिंगार कुमकुम से, कुमकुम से। क्या चिंकी, बस तुझे खाना खाना है, तुझे वो भी नहीं आता क्या? क्या करती है? एक दिन ससुराल जाना है तुझे, क्या करेगी ऐसे? मेरी भी ना कर पाएगी। चल जल्दी साफ कर। अभी साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ जा। माँ की जली कटी बातों को सुनकर चिंकी को बहुत दुख होता है। उसका मन नहीं मानता ये सब बात सुनने का, फिर भी वो बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखती है। माँ की अच्छी बनाई है, मुझे और चाहिए। अच्छा मेरे राजकुमार को और खीर चाहिए। चिंकी सुन तो जरा अपने भाई के लिए खीर तो ले आ। माँ, पर खीर तो थोड़ी सी बची है और वो मैंने अपने लिए रखी है। तो क्या हो गया चिंकी, वैसे भी तुझे तो ससुराल जाना है। मेरा बेटा खाएगा खीर और मेरे लिए कमा कर लाएगा। जाकर गोलू के लिए खीर लेकर। ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ। ये लो भाई। परिवार में सारा प्यार और संघर्ष क्या केवल लड़कियों के लिए है? विज्ञान भी कहता है कि लड़कियों को हर रोज कम से कम 900 ग्राम की पौष्टिक आहार की जरूरत है। जिनकी गोलू के रूम में जाकर पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद गोलू अपने रूम में आता है और चिंकी से कहता है, क्या चिंकी, मुझे सोना है, तू कहीं और जा। थोड़ी देर तो पढ़ने दो मेरे भाई। मुझे थोड़ी देर तो पढ़ने दो मेरे भाई। चाची के लगाओ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? माँ, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। माँ मुझे सुनना है, चिंकी मुझे सुनने नहीं दे रही। हाँ, पर मैंने तो थोड़ा ही समय ही तो मांगा है। क्यों चिंकी, इतनी रात को पढ़कर क्या करोगी? जाओ जाकर सो जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो।
चिंकी के पापा आते हैं। चिंकी बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। ये लो तुम्हारे एडमिशन के पैसे, और अपनी माँ और भाई को बताने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद पिताजी। हमेशा मन लगाकर पढ़ना बेटा। हम लड़कियों का प्यार नहीं मिल पाता है, फिर भी हम थोड़ा सा भी प्यार पाकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन चिंकी एडमिशन करवाने के बाद सर की क्लास लेने के बाद बहुत खुश हो जाती है। अगर इसी तरह से चिंकी मन लगाकर पढ़ेगी तो एक दिन IAS जरूर बन जाएगी। माँ मैं आ गया। मैं मेरा राजा बेटा, तू आ गया, चल टीवी देखते हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं देखना। चुप, देख तो जरा अक्षरा की सास उसके साथ क्या क्या करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। ईमानदारी और जुनून इसी को कहते हैं। गोलू के पापा किधर हो, आ जाओ। ओ गोलू के पापा, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्या हुआ? अरे आज मेरे बेटे का परीक्षा है, वो परीक्षा देने जा रहा है। चिंकी, जरा अपने भाई के लिए दही और शहद तो लेकर आ। अच्छा मैम, अभी लाती हूँ। अच्छे से परीक्षा देना। खुश रहो, मन लगाकर पढ़ना। एक और गोलू जो थोड़ी ही देर में थक गया, और दूसरी ओर चिंकी जिसका लक्ष्य है सिर्फ पढ़ना और अपनी मंजिल को हासिल करना। चिंकी निश्चित करती है कि वो खूब पढ़ेगी और IAS बनकर दिखाएगी। देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और परीक्षा का दिन आता है। गोलू और चिंकी दोनों भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। दोनों परीक्षा हॉल में जाते हैं और अपनी परीक्षा देते हैं। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन माँ और बेटा दोनों टीवी देखने लगते हैं कि अचानक से टीवी पर खबर आती है परीक्षा के परिणाम की। नमस्कार, इस बार UPSC टॉपर छोटे से नागपुर गांव की बेटी आकांक्षा है, जिसने अपने माता पिता के आकांक्षाओं को पूरा किया है। अरे ये आकांक्षा तो हमारी चिंकी है। क्या? हाँ, ये आकांक्षा हमारी चिंकी है। अब ये सब काम उसके लिए नहीं है, इसका तो कुछ और ही काम है। ये तो अब DM बन गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम DM बनोगी। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, ये आपके और पिताजी के आशीर्वाद के बिना कभी संभव नहीं है। अच्छा, जरा बताना, गोलू ने परीक्षा कैसा दिया? ये तो फेल हो गया। हाय मेरी किस्मत, जिसको हीरा समझा वो कोयला निकला, और जिसको कोयला समझा वो हीरा निकली। हमारे देश के संविधान नर नारी को एक सम्मान प्राप्त किया है। नर नारी में भेदभाव करना कानूनी जुर्म है।
I welcome Janab Mohammad Salim Sahab, coordinator of Youth Body, for coming to the occasion. I welcome Janab Mir Mohtasham Ali Khan Sahab, silver medalist, World Bodybuilding Championship. And Farooq Sahab. I welcome Mr. Faisal Sahab. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सारी तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह ताला के लिए है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पर न्यू मॉडल हाई स्कूल के एनुअल डे में आज मुझे बुलाया गया और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब अहमद बशीरुद्दीन फारूकी साहब, रिटायर्ड DO, जनाब मोहम्मद सलीम साहब, कारपोरेटर यूथ बॉडी, जनाब सैयद फ़हीम साहब और हमारे स्कूल के बानी जनाब खलील साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और 2 साल के बाद फिर एक मरतबा आप तमाम लोग एक एनुअल डे यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक एनुअल डे नहीं हो रहे थे क्योंकि कोविड की वजह से। तो कोविड-19 की वजह से एनुअल डे नहीं हो रहे थे और मैं यहाँ पर एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पे आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, मैं यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हैं, जो माएँ, ख़ासतौर पे माएँ बहनें जो आई हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कोविड-19 में जो लोग जिसका स्टैमिना कम था, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, उन लोगों को कोविड-19 की वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ और ज़्यादा अमवातें उन लोगों की जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, जिसका स्टैमिना नहीं था, उनको कोविड ने ज़्यादा मुतासिर किया। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर नज़र डालें और नज़र डालते हुए जो जागने का मशगला हो चुका है हमारे घरों का, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था, तो जब से जो जाग रहे हैं तकरीबन घरों में मैं जहाँ पर जाता हूँ, कॉलेजेस में, स्कूल में यही कहा जा रहा है कि बच्चा देर से आ रहा है या बच्ची देर से आ रही है। तो मैं यहाँ के पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, बच्चों को 10 से 10:30 के दरमियान बच्चों को सुलाना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों की हेल्थ अगर अच्छी चाहते हैं और आप अपनी खुद की हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो बच्चों को जल्दी सुलाना है, आपको भी जल्दी सोना है। क्यों? क्योंकि 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम होता है, हमारे सिस्टम को रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर हम अपने सिस्टम को रेस्ट देंगे, हम टाइम पे अगर सो जाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है और उस वक्त बच्चे का नशोनुमा जो होता है, ग्रोथ जो होती है, उसका मसल जो डेवलप होने का टाइम है, वो टाइम होता है। अगर वो टाइम पे अगर हम सो जाएंगे, वो टाइम से 10:30 से और 4 बजे तक अगर आप सोएंगे तो समझिए आप एक हेल्थी स्टूडेंट, एक हेल्थी बच्चा स्कूल के लिए दे रहे हैं। वरना हमारी हेल्थ खराब होगी और ख़ुद अल्लाह ताला सूरह नबा में फरमाते हैं, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए और दिन दिया है काम करने के लिए। इसके ऊपर हम तमाम लोगों को अमल पैरा होने की ज़रूरत है। और कई बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से वीक हो चुके हैं, कई बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, मैं उन बच्चों से और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, अब वक्त आ चुका है कि आप लोग मेहनत करना ज़रूरी है और मेहनत करके अच्छे तालिब इल्म बनना है। क्यों? क्योंकि हदीस में आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो हम अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, फिर यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा, 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। हर वक्त 3D की बात होती है, मैं 3D के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज 4D के बारे में मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा। पहला है डिसिप्लिन। जो बच्चे के पास डिसिप्लिन रहा वो बच्चा कामयाब हो सकता है। और दूसरा है डेडिकेशन।
और तीसरा है डिटर्मिनेशन, और चौथा डी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। और अगर मैं जो कुछ भी यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ तो वो चौथे डी की वजह से है। और चौथा डी है माँ बाप की दुआ। अगर जो बच्चे अपने माँ बाप की दुआएं लेंगे वो यहाँ पर भी कामयाब हो सकते हैं और वहाँ पर भी कामयाब होंगे। कुरान इसके बारे में कहता है अनिश्कुरूली वली वालिदै, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। और दूसरी जगह कुरान कहता है वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो। लेकिन देखने में आता है बच्चा या बच्ची 8th में आते हैं, 9th में आते हैं, 10th में आते हैं तो अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं, अपने माँ बाप से अच्छी बात नहीं करते। माँ बाप कहते हैं जाइए पढ़िए सोइए, जो भी काम कहते हैं अपने बच्चे, कई बच्चे मैंने देखा कि 8th 9th 10th में आने के बाद अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। खबरदार बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में कहते हैं तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। उफ की बात आती है, झिड़की या ऊंची आवाज से बात करना तो दूर की बात है, उफ की बात आती है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक कीजिए, उनके साथ एहसान कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। क्यों दुआएं लेना है, मैं बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद दिलाता हूँ, फिर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। क्यों, सबको मालूम है नमाज पढ़ना फर्ज है, सबको मालूम है रोजा रखना है, रमजान आ रहा है, सबको मालूम है, लेकिन हमको रिमाइंडर्स जैसा मिलते हैं हमारे दिल में बात उतरती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी क्या थी, माँ बाप की दुआ की जरूरत है। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे चढ़ना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आवाज देके कहता है मूसा रुक जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करते थे। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं अल्लाह मैं तूर पे आया ही नहीं, पहाड़ पे मैं पूरा चढ़ा ही नहीं, आप मुझको रुकने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है मूसा, तुम ये ना समझना मूसा, तुम नबी है बोल के हम तुम्हारी हर बात सुनते थे मूसा, तुम जब घर से निकलते थे मूसा, जब तुम घर से निकलते थे तो तुम्हारी माँ दरवाजा बंद करते हुए ये दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मूसा जिद्दी है, कुछ मांग ले तो दे देना, तो हम तुमको दिया करते थे मूसा आज तुम्हारे पीछे दुआ के लिए जो 4 हाथ उठते थे मूसा, वो 4 हाथ नहीं रहे मूसा। हमने तुम्हारे माँ बाप को तबाही मौत दे दी, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है मूसा। आज कुछ मांगना तो संभल के मांगना, चाहे तो हम देंगे चाहे तो रद्द कर देंगे। मूसा बिन इमरान सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह के सामने आह व बका करना शुरू कर देते हैं। ये माँ बाप है दोस्तों। मूसा अलैहिस्सलाम को भी माँ बाप की दुआओं की जरूरत थी। सोचिए हमको कितनी माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। इसीलिए मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ, जिंदगी में अगर डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऐसा MP बनना है, सलीम साहब के जैसा कारपोरेटर बनना है, बशीरुद्दीन साहब के जैसा एजुकेशनिस्ट बनना है, खलील साहब के जैसा एजुकेशनिस्ट बनना है। बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, माँ बाप की अगर दुआएं लेंगे तो आप यहाँ पर भी कामयाब होंगे और वहां पर भी कामयाब होंगे। इसी बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि तालीम के ऊपर भी इसी तरीके से आप तवज्जो दीजिए। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के रोजों का एहतमाम कीजिए, क्योंकि रमजान मुबारक 12 महीनों का जो 1 महीना हमको इबादत के लिए मतलब अल्लाह ताला उसमें हमारी मग़फ़िरत करते हैं, तो वो महीने की तैयारी कीजिए, रोज़ों का एहतमाम कीजिए, क्योंकि रमज़ान का एक भी रोज़ा अगर कोई ऐसे ही छोड़ देगा तो वो तमाम उम्र भी अगर रोज़े रखेगा तो रमज़ान के एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता। और बहुत बेहतरीन काम हमारे खलील साहब कर रहे हैं, वहाँ पर इज्तिमा भी होता है, तो हर मंगल के दिन कुरान की तफसीर भी होती है माशाल्लाह। ये काम के साथ वो भी कुरान का काम कर रहे हैं। कुरान का महीना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह के सामने तौबा कीजिए। अल्लाह ताला ने हमको एक मौका दिया है, नहीं मालूम अल्लाह के नबी की अगर दुआ नहीं होती तो हम सारे के सारे लोग चले जाते। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ हलाक नहीं करना, इसलिए हम बच गए।
आप बच गए तो हम अल्लाह की इबादत ज्यादा करेंगे। कुरान का महीना है रमजान का, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत कीजिए और आखिरी जो 5 रातें हैं उसके अंदर जागिए, शब-ए कदर को ढूंढिए। 5 रातों में क्या है, शब-ए कदर को ढूंढना है। अगर मिल गई 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, 5 रातों को जागना है। हम अक्सर सिर्फ 27 को जागते नहीं, 5 को जागिए, क्योंकि 5 में से कौन सी रात है शब-ए कदर नहीं मालूम। अगर जिसको शब-ए कदर मिल गई 83 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलने वाला है। आप लोग सोच रहे हैं स्कूल का मामला है, मैं जलसे के जैसा मैं इस्लामी बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्यों, अगर पहले इस्लाम है बाद में सब कुछ है, इस्लाम के साथ एजुकेशन भी है। इसलिए ये 5 रातों को जागिए, जो जागेगा जिसको मिल गई रात 83 साल की इबादत के बराबर उसका सवाब मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों को भी रोज़ा रखाइए और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दीजिए। बच्चों को जल्दी सुलाइए, फजर की नमाज के बाद बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का माइंड शार्प होता है। इसके साथ साथ मैं तमाम पेरेंट्स से कहूँगा, बच्चों को 4 चीज़ ज़रूर दीजिए। अगर आपका बच्चा हेल्दी होना है तो 4 चीज़ दीजिए, उसके बाद आपका जिस तरीके से बच्चा हेल्दी होता है। देखिए शाकिर साहब बैठे हुए हैं, शाकिर साहब की मैं एज बोला था, अपना परेशान हो जाते हैं। आज भी शाकिर साहब फिट है, हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज है माशाल्लाह से। शाकिर साहब को मैं बचपन से देखता हूँ, शाकिर साहब के सामने बड़ा हुआ, बिल्कुल हक बात है, हम हक बात बोल रहे। तो अगर फिटनेस आपको चाहिए तो 4 चीज बच्चों को जरूर दीजिए। बाहर के चीज़ें लेस कुरकुरे या पेप्सी हो ये मत दीजिए, 4 चीज़ें जरूर दीजिए। एक सेब जरूर दीजिए बच्चों को, एक उबला हुआ अंडा जरूर दीजिए, एक कप दूध जरूर दीजिए। और जब एग्जाम्स आते हैं तो 2 अखरोट कम से कम 4 महीने पहले 2 अखरोट खिलाना बच्चों को शुरू करिए। बच्चों का माइंड किस तरीके से शार्प होता है आप देखिए। और दूध और अंडे से बच्चे की ग्रोथ हाइट बढ़ती है। अगर कोई बच्चा दुबला है तो उसके मसल क्वालिटी भी, मसल उसका वेट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। इन बातों के साथ मैं खलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला न्यू मॉडल स्कूल जो मेरे ख्याल से 40 साल के ऊपर हो गया, इसके 50 साल 60 साल पूरे हुए और यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट और अच्छे स्पोर्ट्समैन अल्लाह ताला यहाँ से निकाले। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। For our valuable messages. Now I request our corporator Janab Muhammad Salim Sahab to say a few words. Sir. Assalamualaikum. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dawud Taslim Farma Janab Basharuddin Farooqi Sahab, Janab Muntazim Ali Khan Sahab, Janab Shakir Sahab, Farooq Sahab, यहाँ के साथीज़ा, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप सब काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। मुझसे पूछकर मुंतज़िम अली खान साहब काफ़ी अच्छी तरीके से बयान कर चुके हैं, क्योंकि मुझे कोई तकरीर करने का नहीं आता, तकरीर करने का मुझे मुकर्रर नहीं हो। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया क्या करना है। तो उसी तरीके से आप लोग जितना हो सके एजुकेशन, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है इंसान को जो है तरक्की करना है, जीवन तय करना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तालीम के बारे में काफ़ी कुछ बताया मुंतज़िम भाई ने और सेहत के ताल्लुक से बताया। माशाल्लाह काफ़ी खुशी हुई उनका बयान में। मुलाकात तो काफ़ी है उनसे, लेकिन तफसीली बयान सुनने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बयान करें। आप सबको फिर एक बार स्कूल की इंतज़ामिया न्यू मॉडल स्कूल के, क्योंकि 40 साल हो गए माशाल्लाह इस स्कूल को 40 साल तक चलाना। 60 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह 60 ईयर्स 60 साल का बहुत मामूली बात नहीं है स्कूल फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर मालूम है किस तरीके से लोग वो करते हैं। फीस के ताल्लुक से भी क्या होता है अच्छी तरीके से वाक़िफ़ है। फीस के साथ यूनिवर्सिटी सब काबिल मुबारकबाद है। स्कूल इंतज़ामिया टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ ये आप लोगों से गुजारिश है, ये दुनियावी तालीम तो पढ़ रहे हैं आप माशाल्लाह, काफ़ी तरक्की के हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है।
दीन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि दीन की तालीम रहा तो बच्चा माँ बाप की खिदमत करता, असातिज़ा की इज्जत करता, क्योंकि दीनी तालीम के माहौल से ही अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है सबसे, इंतजामिया को, टीचर्स को मुबारकबाद, आपका ये 60 साल एनुअल डे काबिल मुबारकबाद। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। Now I request Janab Ahmed Basharuddin Farooqi Sahab, retired Deputy Education Officer, to say a few words. अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I would like to first address in English because this is English medium school. Then I'll switch on to the Urdu language for a couple of minutes. Respected Janab Khalil Rahman Saab, correspondent of the school, respected dignitaries sitting on the dash, parents and my dear students. At the outset, I am thankful to Mr. Khalil Rahman Saab for having invited me to today's annual day function. I would like to tell the 10th class students who are going to appear for the SSC examination in May 2022, just about 1.5 months is left for the examination. Please prepare well, have a timetable of your own timetable, and then at least devote 5 to 6 hours for your personal study after the school and in the morning. That will help you to get good grade, point average, and if you get good grade, point average, you will get admission in a good junior college with good course, and your future will be bright. And मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर पेरेंट्स के बहुत सारे हैं और वो अंग्रेजी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। तो आपके जो बच्चे पिछले 2 साल में सेल से एडिक्ट हो गए हैं, सेल फोन से एडिक्ट हो गए हैं, इनको जो है इस बात की कोशिश कीजिए कि जो वक्त जब जरूरत पड़ती है, जब ऑनलाइन होता है, अब ऑनलाइन खत्म होगा, ऑलमोस्ट फिजिकल क्लासेस हो रहे हैं, तो इन्हें सेल से दूर रखने की कोशिश कीजिए और समझा कर और क्या कहते हैं आपके उन्हें बतला कर के देखिए तुम्हारा वक्त बहुत कीमती वक्त है और इस तरीके से वक्त को गंवाना नहीं है, तो सेल फोन से उनको दूर रखने की कोशिश कीजिए। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप इस बात की कोशिश कीजिए कि आपके जैसे हमारे मोहतरम मनी साहब ने बताया कि आपके बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी जो है उसको आप ऊपर नज़र रखिए और उन्हें जो है बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशियस फूड दीजिए ताकि वो जो है अच्छे उनका डेवलपमेंट हो। और 10th क्लास के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि गर्मा का मौसम ठीक रूट पर है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड का कल और बताया जा रहा है कि पिछले आइंदा 2 या 3 दिन में it may cross about 40 degree centigrade, 40 to 41. Have more and more water, drink more and more water, and आप अपनी कोशिश कीजिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का और अपनी तैयारी को जो है आगे जारी और सारी रखें। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको सेल फोन से दूर रहने के लिए। सेल फोन आपका जब काम आता है, जब आपकी ऑनलाइन कोचिंग थी, ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, जब आपका सेल फोन इस्तेमाल करना जरूर था, लेकिन अब सेल फोन से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए और अपना वक्त जो है किताबों में और वक्त में सही वक्त जो है वो करने के लिए इबादत में और 5 वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। एक किसी जो है मोहतरमा की मैं बात से बहुत मुतासिर हुआ था, वो बात आपके सामने कहना चाहूँगा। करिश्मा गुलजार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेडी है। जब आप इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला ने दुनिया में कायनात में हर चीज़ को किसी न किसी मकसद से पैदा किया, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई काम आती है वो चीज़। तो दुआ करते वक्त ये काम, ये बात याद रखिए आपकी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह आपने कायनात में तमाम चीज़ों को जो पैदा किया किसी न किसी मकसद से, मुझे भी किसी मकसद या ऑब्जेक्टिव के तहत पैदा किया है और मुझे उस ऑब्जेक्टिव में या उस मकसद में कामयाबी अता कीजिए, इसके लिए मुझे। तो मैं बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
यहाँ के कॉलेज साहब को, असातिज़ा को जो है उन्होंने बच्चों को अच्छा तैयार किया। और ये क्या है कि एक किस्म का बच्चों में एक जब आप कोई उनको जो है प्रोग्राम में कोई रोल देते हैं या वो करते हैं तो बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, खुद एतमादी पैदा होता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्लासरूम की टीचिंग अपनी जगह है, लेकिन खुद एतमादी पैदा करना बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Morning, ma'am. And I'm going to play the role of friend. Good morning, I am the shy. Going to play the role of singer. Good morning, I am Afiza and I am going to play the role of farmer, sir. Good morning, I am Hani and I am going to play the
आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो। देखो फेस इधर रहना, जोर से बोलो। मैं करीब ले लो। Yes, your letter has come. I want your signature. I'm not a signature. Okay, so give me your signature. Oh, this is your signature. Yes, your signature. Can you please read the letter for me? See? No, here. I don't have time. I want to become a singer. I am going to perform. Go to heaven. But no one is reading this letter for me. I don't know how to make sense of it. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Can you please read the letter for me? No. I am not reading that letter. I am reading it. Oh God, send someone. I don't know how to read the letter. Post. Excuse me, sir. Can you please read the letter for me? Since 2 days, I don't know how to read the letter. The letter is with me. Okay, I will read. Your wife has given a birth to 2 twins babies, and you have called to your in-laws house. Congratulations. Oh, this good news came. I'm so glad. Is no one educated in your house? Is he your son? Yes, ma'am. Can't he read? You want to become a doctor from now? Yes. From now on, not usual. You are educated well and thank you. I'll be the food is sweet. Remember to cover your mouth when you sneeze or when you cough. Use a tissue and wash your hands. That is always the best plan. Use your manners everywhere. Use your manners everywhere. Don't forget the magic words. You must use them wherever you go. Thank you, sorry, excuse me, please. Are kind words to say you will see. Use your manners everywhere. Use your manners everywhere. Anytime and anywhere. Anytime and anywhere. Be respectful all the time. You must use them wherever. Wait your turn and be on time. Use your manners everywhere. Use your manners everywhere. Anytime and anywhere. Anytime and anywhere. Don't forget the magic words. You must use them wherever you go. Thank you, sorry, excuse me, please. Are kind words to say you will see. Use your manners everywhere. Use your manners everywhere. Anytime and anywhere. Anytime and anywhere.
ईमानदारी से करो, मेहनत उतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दो। शायरी अपने टीचर्स पर कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, तोड़ देते हैं जहालत के अंगारे, इनकी शम्मा जलाते हैं हमारे उस्ताद। शायरी बरसों पर आसमान से टूट कर सितारा दिया है, आलमे तन्हाई में एक सहारा दिया है, आसमान से तोड़ कर सितारा दिया है, आलमे तन्हाई में एक सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी नाज करती है मुझ पे, खुदा ने दोस्त ही इतना प्यारा दिया है। शायरी माँ बाप पर मिलने को तो हजार लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजार लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। बाजार से सब मिल जाता है, बाजार से सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही